Good evening, everyone. My name is Prince. Welcome to another video of market discussions. वीडियो रिकॉर्ड हो रही है संडे को 22nd of June for the market that happened on 20th of June Friday. और आप देख पा रहे होंगे ये निफ्टी का वन डे टाइम फ्रेम है. What a beautiful big green candle. Nifty closed 1.3% positive. Bank Nifty 1.22% positive. And a look on another major index is still that mid cap Nifty closed over 2% positive. Next 50 1.35% positive. ठीक है, and the rest of those. In fact, a good thing was that India VIX over 4% negative. ठीक है, reduced the volatility, reduced over 4%, which was a very good thing. Actually, किसी दिन आपको पता चलता होगा कि indices are up. ठीक है, plus VIX is also up. ठीक है, this is not good. ठीक है, even if the market is up but the VIX is up, it is not good because in this case the volatility is up, so this means that this can go down anytime. All right, and when the indices are up plus VIX is down, okay, this is very good for the markets in a longer term, that your logic has worked. Okay, the markets have rallied on a pure logic, on the strength, the true strength that the market wants to go up with. That is the meaning. Okay, so that day, Friday, was a good day because the VIX has reduced over 4% and the indices have rallied over 1% overall. So that was a good day. Now, coming to analysis of Nifty on one day time frame tells me that please remember this range that we made last time. Okay, this is the perfect Darvis box pattern, I would say. Okay, this is the Darvis box pattern. All right, that the Nifty is trading in between. Okay, and you would be very much seeing once it entered this Darvis box, ठीक है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, it tried to give a breakout but no green candle supporting green candle, it came down. ठीक है, due to tensions between Israel and Iran, it opened very low. Darvis box के एकदम लो पे यहीं से रैली पकड़ी, ऊपर गया और वापस. and the good thing is we have closed in green. ठीक है, we have closed in green above the upper limit, that is we have got a breakout. And let me put this breakout in a green box. Okay, we have a breakout, so which is a good thing. Now that what is the difference between last time and this breakout? The breakout that tried to happen here couldn't succeed because we didn't have a green closing. ठीक है, यहाँ पर ग्रीन क्लोजिंग नहीं थी, मिसिंग थी लास्ट टाइम. ठीक है, दिस इज लास्ट टाइम ग्रीन क्लोजिंग नहीं थी, प्लस सपोर्टिंग पॉजिटिव ग्रीन कैंडल भी नहीं थी. बोथ द थिंग्स वर मिसिंग. ऑलराइट, नाउ this time, all right, now this is this time. What do we have right now is we have got a green clothing. Okay, we have this. Now what is awaited is a supporting now this is something that is awaited. Okay, and I'll put this inside a box because this is awaited. Okay, please remember. अब हुआ क्या है, इस आज ये जो सैटरडे संडे था, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी इंटरनेशनली, जियोपॉलिटिकली, ग्लोबली ऐसा बोल सकते हैं, जियोपॉलिटिकल ऐसी चीज़ें हो गई हैं जिससे कल इसका एक कैरी फॉरवर्ड यानी एक सपोर्टिंग कैंडल मिलना फिर से मुश्किल लग रहा है. तो हुआ क्या है, आज 22nd of June, इंडिया, मैं इंडिया के बारे में बात कर रहा हूँ, IST 5 AM. ठीक है, 5 AM यानी 5 बजे सुबह इंडिया में
तो यूएस का टाइम जो होगा वो डेट होगी 21 जून 5 PM। अमेरिकन टाइम 21 जून डेट 5 PM। और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 22 5 AM। ठीक है। यूएस ऑफिशियली told the world that they have bombed the nuclear they have bombed the three nuclear facilities of Iran। ठीक है, ऑफ ईरान। तो अब हुआ क्या है, दिस मीन्स दैट यूएस हैज ऑफिशियली joined the war that was earlier between Israel and Iran. Now US has officially joined into it. अब हुआ क्या है, इसके बाद इसराइल ने हमला करना बंद कर दिया। इसराइल ने बोला वॉट एवर अवर एम वॉज, कि हम न्यूक्लियर पावर उनको नहीं बनने देना चाहते थे ईरान को, उसके लिए ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को डिस्ट्रॉय करना जरूरी था। और टुडे विद द यूएस बॉम्बिंग दोस फैसिलिटीज व्हिच वर डीप इनसाइड 200 to 300 फीट बिलो द अर्थ सरफेस, तो इसलिए B2 बॉम्बर्स का यूज किया है। ठीक है, दे हैव यूज्ड द B2 बॉम्बर्स। ठीक है, B2 बॉम्बर्स 30 टन ऑफ 30 टन ऑफ बॉम्ब, मतलब 30 टन उसका वेट था, यानी 3000 किलो इन टोटल, तीन साइड पे लगा, 1000 किलो 1000 किलो 1000 किलो डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो विद दिस द न्यूक्लियर जो डेवलपमेंट था ईरान का वो बहुत पीछे चला गया है, एंड नाउ दे वोंट बी एबल टू डेवलप अ न्यूक्लियर बॉम्ब एज ऑफ नाउ, अभी के लिए, फिलहाल के लिए। तो अवर ऑब्जेक्टिव, इसराइल ने बोला अवर ऑब्जेक्टिव इज कंप्लीटेड एंड नाउ वी वोंट बी अटैकिंग ईरान फर्दर। ठीक है, तो ईरान ने स्टॉप कर दिया था, बट सॉरी इसराइल ने अटैक करना स्टॉप कर दिया था, बट ईरान हैज रिटेलिएटेड। ठीक है, ईरान अभी भी रिटेलिएट कर रहा है, इसराइल पे मिसाइल चलाए हैं, एंड इट हैज वार्नड यूएस ऑफ डायर कॉन्सिक्वेंसेस, डिक्लेयरिंग दैट इवन इफ वी सी द सिटीजंस ऑफ यूएस वी वुड बी किलिंग देम। ठीक है, इनफैक्ट ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने अभी अभी जस्ट एज आई एम स्पीकिंग एज आई स्पीक एज आई एम रिकॉर्डिंग द वीडियो, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने ये चीज बोली है कि ही वुड बी ट्रैवलिंग टुनाइट टू रशिया, है ना, फॉर अ मीटिंग विद Putin, the president of Russia, to see what all possible options they have to retaliate against US. Meanwhile, the US army is on high alert, Israel is on high alert, and in fact, the Iran has officially told its army to be on high alert. So the things, अब हुआ क्या है, यूएस ने जो बॉम्ब किया ना, इसके बाद यूएस आस्क्ड ईरान to come negotiate diplomatically। ठीक है, ईरान रिजेक्टेड। ठीक है, ईरान रिजेक्टेड, सेइंग दैट आफ्टर व्हाट हैज हैपेंड टुडे वी आर नॉट गोइंग टू नेगोशिएट। इनफैक्ट एक मीटिंग थी जो यूरोपियन यूनियन के कुछ कंट्रीज जैसे फ्रांस, इटली, इनके फॉरेन मिनिस्टर्स ने ईरान के फॉरेन मिनिस्टर के साथ की थी, जस्ट टू ट्राई टू गेट हिम ऑन नेगोशिएटिंग टेबल ऑन विद यूएस, बट उसमें वो भी चीज़ नहीं निकल के आई सामने, उसका भी कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं निकल के आया। सो एव ऑफ नाउ व्हाट इज द थिंग, थिंग्स do not seem to be settling down soon। ठीक है, इनफैक्ट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, ठीक है, इफ एनी वन ऑफ यू वुड बी स्टडिंग ज्योग्राफी, ठीक है, वुड बी स्टडिंग व्हाट टू से इंटरनेशनल रिलेशन, यू वुड बी नोइंग दिस स्ट्रेट। ठीक है, इस कैन बी easily controlled by ईरान। ठीक है, ये चोक पॉइंट की तरह है, एंड ईरान कैन चोक दिस पॉइंट, एंड आई वुड से 28 to 30%
ऑफ वर्ल्ड्स क्रूड ऑयल, ठीक है, passes via this trade, ठीक है, रिमेंबर दिस। एंड होगा क्या, अब ईरान ने बोल दिया है कि अब इससे हम जाने नहीं देंगे, ठीक है, विच वुड लीड टू क्रूड ऑयल प्राइजेस सर्जिंग हाई, ठीक है। तो विद दिस वी कैन इन्फो दैट एनी वन ऑफ यू इट्स ही वुड बी होल्डिंग सम सी पोजीशन इन क्रूड ऑयल, यू वुड बी गेटिंग सम प्रॉफिट टुमारो मॉर्निंग, ठीक है। कुछ कंट्रीज के स्टॉक मार्केट्स अभी ओपन हुए हैं इस टाइम, तो उनमें इक्विटीज में सेलिंग आई है, मार्केट में सेलिंग दिख रही है, ठीक है। तो बाय दैट वी कैन से दैट हो सकता है कि कल तक अगर सिचुएशन और वर्सन ऑफ होती है तो अपने मार्केट में भी सेलिंग देखने को मिले। अब इसके ऑन बिहाफ आई वुड, मतलब ऑन बिहाफ नहीं, इसके अलावा आई वुड से कि इजराइल जो है, ठीक है, उसका जो स्टॉक मार्केट है वो इतने दिन से वॉर होने के बावजूद ऑल टाइम हाई बना रहा था, ठीक है, ओपनड एट ऑल टाइम हाई, आज भी ये खुला है एंड इट हैज ओपनड एट ऑल टाइम हाई। जस्ट इमेजिन द ओनली कंट्री दैट वाज इनटू द वॉर विद ईरान, उसका स्टॉक मार्केट हर दिन ऑल टाइम हाई बना रहा था, एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है स्टॉक मार्केट वो सब गिरे जा रहे हैं। तो लेट्स सी अपना क्या होगा। अब इस सब के बाद अगर मैं एक चीज बोलूंगा तो मैं यही बोलूंगा कि इस मार्केट को देखिए जो अपना था, इसने काफी अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई थी लास्ट फ्राइडे, वीकली क्लोजिंग बहुत अच्छी हुई है। अब अगर यहाँ से एक सेल ऑफ कल आता भी है, कल सेलिंग अपन को देखने मिलती भी है ड्यू टू अमेरिका अटैकिंग ईरान, द क्रूड ऑयल प्राइसेस गोइंग अप, द गोल्ड प्राइसेस विल गो अप एंड दे वुड बी सेलिंग इन द इक्विटी मार्केट यानी स्टॉक मार्केट। अगर ऐसा होता भी है तो प्लीज बाय दैट डिप, प्लीज बाय द डिप, बिकॉज मुश्किल से एक दिन या दो दिन हो सकता है कल जहां अपन खुलेंगे वो उसका लो पॉइंट होगा और वहां से सीधे बाइंग वापस आ जाएगी मार्केट में। तो एक या दो दिन में अपन इस रेंज का जो आज ब्रेकआउट दिया है इसके ऊपर सस्टेन करेंगे और 25,500 से 26,000 की तरफ आपको मार्केट जाता हुआ दिखेगा। तो प्लीज बाय द डिप, ओके। आइए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हैं मार्केट क्या रहा है लास्ट है। ये देखिए पहली कैंडल आई, ऊपर से सेलिंग आई, नथिंग टू वरी। दूसरी फॉलो अप कैंडल आई, एक आई, इसके यहाँ रेंज बनाया, ब्रेकआउट ब्रेकआउट गया, यहाँ पर एक रेंज बना रहा था, इसका भी ब्रेकआउट आया, रीटेस्ट हुआ और बहुत प्यारा अपन को कंटिन्यूस मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने मिला। शॉर्ट कवरिंग भी उस दिन आई है, लॉन्ग्स भी एफआईज ने ऐड किए हैं विच इज़ वेरी गुड। बैंक निफ्टी आप क्लियरली देखिए काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। इनफैक्ट जो इसका प्रीवियस ब्रेकआउट था, अगेन अपन ने इसका ब्रेकआउट दिया है बैंक निफ्टी में भी, ठीक है। breakout is done now. This previous time it was only in bank nifty, but this time even in nifty we have got a sorry, previous time only in bank nifty, but this time both in bank nifty and nifty, so which is a good thing, both the indices are moving strongly। इसमें भी सेम पैटर्न बना है, देखिए देखिए देखिए, एक बार इस लाइन का ब्रेकआउट हुआ, ऊपर गया, रिटेस्ट रिटेस्ट और भागा है, डब्लू पैटर्न है। इसके ऊपर अब यहाँ पे अगर इको ग्रीन आती तो यहाँ से स्ट्रेटली आपको बाइंग दिखती, बट हो सकता है यहाँ पे वापस एक रिटेस्ट करके और फिर इसमें ट्रिपल बॉटम पैटर्न बना के वापस से ऊपर जाए। तो एक बार यहाँ पे इस लाइन का आप वैल्यू देख लीजिए, ये है 56,100, 56,104 यानी 100 मान लीजिए ये। अब इसमें भी अगर कल के दिन आपको डिप मिलती है मार्केट ओपन होते ही तो प्लीज बाय इट, ठीक है। निफ्टी के फ्यूचर्स हैं, देखिए बहुत शानदार है। इनफैक्ट मैंने आपको बोला था 25,000 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेनली जो लेवल रहेगा वो रहेगा 24,950 का, यही मैं असली ब्रेकआउट का लेवल मानता हूँ निफ्टी फ्यूचर में। और इसी के ऊपर अपन ने कल वापस एक पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग की है, वीकली टाइम फ्रेम पे भी अपन ने इसके ऊपर क्लोजिंग की है जो कि एक बहुत अच्छा साइन है। और इसकी क्लोजिंग हुई थी 25,111 पर, तो 24,950 यानी 100 पॉइंट और 50 पॉइंट, 100 पॉइंट 50 पॉइंट यानी 150 पॉइंट की गिरावट भी अगर इसमें दिखती है, जो कि कल आपको दिख सकती है, तो आपको घबराना नहीं है, इसी पॉइंट से एक वापस बाउंस आएगा। और ये ब्रेकआउट स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, प्लीज ये फेक ब्रेकआउट नहीं है, फेक ब्रेकआउट यहाँ था,
ये फेक ब्रेकआउट नहीं है, ये जेन्युइन ब्रेकआउट है जो अपन को कल लाइव मार्केट में, रनिंग मार्केट में मिला था प्राइस को ऊपर ले जाते हुए। दिस वॉजेंट अ फेक ब्रेकआउट। ठीक है, तो आई विल राइट हियर आई एम सीइंग अ डिप एट ओपनिंग। ठीक है, ओनली बिकॉज ऑफ जियो पॉलिटिक्स। ठीक है, बट रेस्ट assured we have got a genuine breakout in both the indices. I'm talking about Nifty and Bank Nifty, and we shall see a good upside momentum from here onwards. Okay, please remember this point. This breakout is a genuine breakout, not a fake one. अब आइए FIDI डेटा देख लेते हैं। देखिए, कैश मार्केट में आप देखेंगे FIs ने लगभग 8,000 करोड़ की बाइंग की है, 3,000 करोड़ की DI से सेलिंग की है। नेट नेट आपको 5,000 करोड़ का बाइंग दिखेगी, विच इज़ वेरी गुड। फ्यूचर्स में बाइंग है। लेट मी जस्ट एक्सपेंड इट, जिसमें आप देख पाएंगे कि बैंक निफ्टी में तो बहुत ज़्यादा ही बाइंग है। ठीक है, और इंडेक्स ऑप्शन में आप देखेंगे तो थोड़ा सेलिंग है, बट आप एक काम याद रखिए कि उसके एक दिन पहले 30,000 करोड़ की बाइंग भी आई थी। ठीक है, नथिंग टू वरी। इनफैक्ट आप वेरी गुड थिंग इज कि FIs ने स्टॉक के फ्यूचर्स में और स्टॉक के ऑप्शंस में दोनों में बाइंग की है। अल्टीमेटली द इंडाइसेस वुड स्काई रॉकेट। अब जियो पॉलिटिकल सिचुएशन जो भी हो, आई एम नॉट वेरी श्योर उसमें कि कितना इम्पैक्ट आएगा, कितनी देर का आएगा, 1 घंटे का होगा या 1 दिन का होगा, बट द मार्केट्स आर गोना गो अप। ठीक है, ये अपनी वो है, यहाँ पर अपनी मार्केट की क्लोजिंग थी। इसके बाद ये वाला था, ये पूरा जियो पॉलिटिकल सिचुएशन के चलते हुए गिफ्ट निफ्टी अपने नीचे आया था, यहाँ से ये, और यहाँ से फिर अपसाइड मोमेंटम। आई एम नॉट सीइंग द इंडियन मार्केट्स गोइंग डाउन डिस्पाइट द जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस। ठीक है, वॉट एवर इट इज। डाउ जोन्स में भी सेलिंग थी, बट डाउ जोन्स क्योंकि अपने गिफ्ट निफ्टी के बाद बंद होता है, तो इसने 2 घंटे के, आखिरी के 2 घंटे में एक अच्छी रिकवरी दिखाई थी, तो विच इज़ अ गुड थिंग। ठीक है, अब आइए अपन एक बार चलते हैं अपने टेलीग्राम ग्रुप के डिस्कशन पे। जैसे ही मार्केट खुला था, 920 पे अपडेटेड कि 25 EMA सपोर्ट इज वर्किंग वेल। ठीक है, फिर मैंने एक आपको कॉल ऑप्शन दिया था। ठीक है, जून मंथ का हीरो जीरो इंडेक्स ऑप्शन कॉल इन बैंक निफ्टी था, 3,900 रुपीज रिक्वायर्ड, मिनिमम 2x था एंड 4x पॉसिबल था। ठीक है, अब और मैं आपको एक चीज बता दूं कि 1 घंटे में ही विद इन 1 आवर, ठीक है, विद इन 1 आवर 2x डन। ठीक है, अब आइए निफ्टी फ्यूचर्स, वही मैंने बोला था कि एक बार ये क्रॉस करके 25,150 तो फिर 25,800 से 26,500 तक जाएगा। वाओ, एक दिन की डे टाइम फ्रेम कैंडल आपके साथ शेयर की। व्हाट इज इंपॉर्टेंट नाउ इज वेयर वी क्लोज। देखिए, व्हाट इज इंपॉर्टेंट नाउ इज दैट वी क्लोज नियर डेज हाई। ठीक है, एक बार चार्ट देख लीजिए 1 डे का। डिड वी क्लोज एट डेज हाई? यस, दिस शोज द स्ट्रेंथ ऑफ आवर मार्केट। ठीक है, वी शुड नॉट सी एनी बिग सेलिंग, ध्यान से सुनिए, नॉट सी एनी बिग सेलिंग, और if we do it should be absorbed and we shall close near days high। अब ये चीज आपको समझ में आएगी जब मैं आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम दिखाऊंगा। ये देखिए, मार्केट ऊपर क्या, सेलिंग आई, एब्जॉर्ब हुई, सेलिंग आई, एब्जॉर्ब हुई, हुआ, एंड वी क्लोज एट डेज हाई। नाउ दैट इज व्हाट आई मेंट व्हेन आई सेड कि भाई अगर सेलिंग आती भी है तो आपको उसका वो सेलिंग को एब्जॉर्ब करना है और डे हाई पे क्लोज करना है। देखिए 920 पे दिया था, 955 पे मैं लिख रहा हूँ, 2x डन ऑलरेडी। वाओ, ठीक है, सो द ऑप्शन गॉट 2x। 1 डे टाइम फ्रेम पे दिखा, इस बॉक्स के ऊपर भी क्लोजिंग आई है, मैंने आपको बता दिया है। ब्रेकआउट ऑफ दैट बॉक्स अपर इतना, और 25,000 क्यों काफी ऊपर क्लोज हुआ है। फिर मार्केट नीचे आया था, मैंने बोला नॉट टू वरी, एरो किया था कि ऊपर जाएगा। एग्जैक्टली देखिए नीचे आया है, ऊपर गया, देख लीजिए आप, 3 रेड कैंडल हैं यहाँ पे, 1 2 3, चौथी रेड कैंडल बनाने के बाद पूरा ऊपर भागा है, यहाँ से यहाँ, तो जिस लेवल पे बोला था उस लेवल पे खड़ा है।
फिर से सेलिंग आई, फिर से मैंने एरो बनाया, ऊपर जाएगा और फिर इसके बाद देखिए ट्रिक, एक सिंगल कैंडल 5 मिनट की। देखिए कैसे आप इसको बता सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर सेलिंग आ रही है, ठीक है, कंटिन्यूसली प्राइस मार्केट को नीचे ड्राइव करिए, लोग बोलेंगे कि इसका बेस टूटेगा, सेलिंग होगी। मैंने लिखा है अबव द ब्लैक रेजिस्टेंस लाइन 25,150 वुड बी द नेक्स्ट ऑफ 150, ठीक है, ये वाला ऊपर वाला। अब देखिए हुआ क्या है, अगली ही कैंडल ने ब्रेकआउट दिया और सिंगल कैंडल इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ ब्रेकआउट गई। आप मार्केट में बाद में एंटर कर ही नहीं सकते, द मार्केट वुड मूव। आपको क्या लगता है एक मिनट की कैंडल जब 50 पॉइंट 60 पॉइंट ऊपर जाएगी, आप उसमें एंटर कर पाएंगे? नहीं, आपके प्रीमियम ऑलरेडी 30-40% ऊपर इन्फ्लेट हो चुके होंगे। एंड देखिए अगली कैंडल 5 5 फुट की ये ऊपर जाती हुई है। दैट इज हाउ यू नीड टू प्रिडिक्ट द मार्केट, एंटर द मार्केट बिफोर इट मूव्स टू अर्न मनी, अदरवाइज यू वोंट। ठीक है, अब ये आज सुबह का ट्वीट है जो मैंने खुद, ट्वीट नहीं मतलब बोल लीजिए जो भी है, ट्रम्प ने डाला था। वी हैव कंप्लीट अवर मतलब वी हैव कंप्लीटेड अवर वेरी सक्सेसफुल अटैक ऑन द 3 न्यूक्लियर साइट्स इन ईरान, फोर्डो, नतान्स एंड एस्वान। ऑल प्लेन्स आर नाउ आउटसाइड ऑफ Iranian airspace. A full payload of bombs was dropped on the primary site, फोर्डो। सबसे इंपॉर्टेंट साइट थी फोर्डो, क्योंकि यहाँ पर 200 to 300 फीट नीचे, कंक्रीट के नीचे इनके न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं ये बनाने की कोशिश कर रहे थे, वो वहाँ पर थे। तो उसको टारगेट करने के लिए ओनली अमेरिका हैड द B2 bombers who had the capability of carrying such bombs who could penetrate to those depth. Okay, congratulations to our British now, ठीक है। And now he is writing, now it is time for peace. Thank you for your attention on the matter. ठीक है, हुआ। अब उसके बाद देखिए ट्रम्प हैज नो प्लान्स, ठीक है, ये सब तो है कि अब और हम अटैक नहीं करना है। फिर Iranian state declared that all the American citizens and military personnel in the regions are now targets. अब इसके बाद का डेवलपमेंट ये है कि वही जैसे मैंने आपको बताया, ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो रशिया जा रहे हैं, ठीक है, ठीक है, मिसाइल अटैक इन लोगों ने करना स्टार्ट कर दिया है वापस, ठीक है। एंड रशिया एंड चाइना, ये लोग क्या बोलते हैं, बिकॉज दे हैव नॉट गिवन एनी स्टेटमेंट टिल नाउ, ठीक है। इस बात को सुबह 5 बजे से आज यहाँ पे 4 बज रहा है अभी, यानी 7 और 4 11 घंटे हो चुके हैं, इन्होंने कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है, रशिया एंड चाइना ने। और ईरान के प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर का रशिया जाना, तो ये चीज़ डिपिक्ट करता है कि वहाँ पे 100% चाइना के भी कुछ कोई ना कोई अपने हो सकता है ये मीटिंग वगैरह हो, तो मैं कह नहीं सकता, बट हाँ कुछ ना कुछ इनका स्टेटमेंट नहीं आना, साइलेंट रहना भी एक डर की बात है कि क्या होगा। तो ये दुनिया किस तरफ जा रही है ये तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, मतलब the things do not look good as of now because the Iran is not on the terms that it is ready to negotiate with US। अभी तो फिलहाल ऐसा नहीं है। तो now everything, ठीक है, for tomorrow everything depends on actions of Iran hereafter, ठीक है। if Iran retaliates against USA, things could get dirty, ठीक है। मार्केट्स could fall over 2 to 3%, ठीक है। क्रूड ऑयल 3 to 4% अप, गोल्ड 1 से 1.5% अप, ठीक है। होगा, कल भी होगा, बट अगर रिटेलिएशन आता है ईरान की तरफ से यूएस के अगेंस्ट, तो ये चीज़ और भी ज़्यादा एस्केलेट हो जाएंगी, ठीक है। ऑल्सो वी नीड टू सी कि रशिया और चाइना क्या स्टेटमेंट देते हैं, वो क्या करते हैं, ठीक है। माय एडवाइस,
buy any dip you get. If you would be lucky, you would be getting a dip. I don't want the markets to take a dip because after such a while we have shown such good strength, and I don't want the markets to go down now. Okay, because of some bewakoofi of some people. But yes, uh, all I would say is we are approaching towards 26,000. Grab the opportunity. All right. Now, with that positive thought, I'll take your leave. Please buy the dip. All right. With that thought, I'll take your leave. Uh, Wishing you good health. Good night. Bye bye.